Assalamu alaikum and a very warm welcome to all of you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. So, I welcome you all in today's orientation and guidance session relating to strategic business reporting. And this guidance session, this orientation session, holds valid for all the batches from September 2025 टिल जून 2026। ठीक है, एसीसी का ये एकेडमिक ईयर है और ये जितनी भी बातें मैं आप लोगों से करने वाला हूं, all these will stand valid and will stand good for all the upcoming batches from September 25 to June 2026। अच्छा भाई, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग इस सब्जेक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। So let's start the proceedings of the session. First of all, a bit of introduction about myself. Okay, I hope I have started the recording. Yes. Okay. So, I will be your facilitator. I will be your tutor for this subject. I have been teaching these subjects since last many years. I myself am a practicing chartered accountant here in Pakistan. I am a fellow member of ACCA, a fellow member of ICAP as well, Institute of Chartered Accountants of Pakistan. I am currently associated in capacity of a member of various technical and professional committees of ACCA and ICAP. And this is my contact information, and you can reach me out at my contact information. I think that's enough about my introduction. Okay, so what is the session agenda? आज का एजेंडा है क्या, हमने डिस्कशन करना क्या है? चलो, तो ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट द एग्जाम्स आर ओवर। आप लोगों ने पेपर्स दे लिए हैं, जो भी पिछले अटेम्प्ट के पेपर्स थे, जून अटेम्प्ट आप लोगों की गुजर चुकी है। And I sincerely pray, I hope, and my best wishes are with you that whichever paper you have attempted, Allah Paak उसमें आपको कामयाब करें, and you succeed all your papers with flying colors. Having said that, you now enter into your upcoming papers. जो भी आप लोगों के न्यू पेपर्स हैं, जो पेपर आप लोगों ने देने थे वो आप लोगों ने दे दिए हैं, और अब जो पेपर्स आपने उठाने हैं, so those students who are watching this session, who are attending this session, इसका मतलब ये है कि they are going to pick strategic business reporting. Strategic business reporting अब उनका सब्जेक्ट है। चलो, so that simply means that you are welcome in the professional or strategic stream papers। ठीक है, स्किल लेवल पेपर्स आप लोगों के खत्म हो चुके हैं या इक्का दुक्का बाकी हैं, and now you have officially entered into the professional stream papers. So that's a very good sign because you are near the completion of your qualification. Congratulations. But with this new responsibility of professional papers, the examiner assumes you to be a professional student. ठीक है, तो ये जितने भी पेपर्स हैं, ऑब्वियसली बात है कि इन मॉनेटरी टर्म्स भी इसकी अटेम्प्ट ऑब्वियसली कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, एंड द नॉलेज, the professional level which the examiner expects from you is also a step higher. So obviously we have to prepare ourselves. We have to prepare ourselves for the corporate world. We have to prepare ourselves for the practical challenges, not only for the examination, but for our practical and professional grooming and career growth as well. So this is one of the papers, strategic business reporting, जो कि obviously is one of the core paper of chartered accountancy. चाहे वो ACCA हो, चाहे वो CA हो, obviously financial reporting, business reporting is a backbone of any chartered accountancy qualification. चाहे वो रिपोर्टिंग का पेपर और ऑडिट का, तो ऑब्वियसली बात है कि ACCA की क्वालिफिकेशन के अंदर रिपोर्टिंग और ऑडिट का पेपर, ये दो कोर पेपर तस्वर किए जाते हैं। तो
इसके बारे में हम बात करेंगे, बट एज फार एज इट्स इम्पोर्टेंस इज कंसर्न, एवरी पेपर विच यू आर अटेम्प्टिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट, बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन नॉट अफोर्ड टू फेल इट। और आप पेपर दे रहे हैं पास करने के लिए, पेपर दे रहे हैं अच्छे से पढ़ने के लिए, अपने आप को प्रोफेशनली इक्विप करने के लिए। सो एवरी पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग के पेपर में है क्या, हमने पढ़ना क्या क्या है। यू विल सी पेपर पैटर्न एंड की एरियाज, क्या पेपर पैटर्न है, किस तरह से एग्जामिन होता है, क्या की एरियाज हैं जो एग्जामिनर जिनको फोकस करता है। पासिंग रेशो इसका क्या रहता है, पासिंग रेशो ऑफ दिस पेपर इज जनरली वेरी इंकरेजिंग, रेंज इज फ्रॉम 45 to 51%, आमतौर पर 50 के आसपास रहता है। इसका मतलब ये है कि जितने बच्चे इस पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, आधे या आधे से ज्यादा पास हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस पेपर को हल्का लेंगे। इसका ये मतलब है कि आप एक्स्ट्रा माइल एफर्ट करेंगे सो दैट यू आर अमंगस्ट दोज हु पास दिस पेपर। हम देखेंगे कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ फेलियर, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, हम आपको किस तरह से हेल्प आउट करेंगे। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल सी दैट हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड विद दिस सेशन, इन दिस सेशन व्हाट विल बी द सेशन प्लानर। ठीक है। ओके, so as far as the subject is concerned, we are moving right on target। इस सब्जेक्ट में है क्या, आपने पढ़ना क्या है। अच्छा, एसीसीए के कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल फिनिश अप विद माय स्लाइड्स, and then I will also share the official documentation of ACCA, the official documents, examining documents, syllabus documents, guidance documents of ACCA. Because obviously, if you are ACCA student, so you should be aware about all the official documentation which is provided by ACCA, and that is for students, आपकी मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए है obviously, so you should know क्या है। अच्छा भाई, सिलेबस ओवरव्यू तो हम देखते हैं कि सिलेबस में क्या है। अच्छा, so let me open those official documentation simultaneously, जहां मुझे जरूरत पड़े मैं उसको रेफर कर सकूं। अच्छा भाई, एक है हमारे पास स्टेपिंग अप फ्रॉम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक है हमारे पास एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट, हमारे पास एसेंशियल्स, एक है हमारे पास सिलेबस डॉक्यूमेंट, और एक है हमारे पास। ओके, तो हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें वी आर मूविंग ऑन टू ओरिएंटेशन। अच्छा भाई, तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग आपको पता है कि दिस इज एडवांस लेवल पेपर फॉर द रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट आपने ऐसा नहीं कि पहले नहीं पढ़ा हुआ, यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस सब्जेक्ट। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग F7 का पेपर आपने पहले ही दिया हुआ है। ठीक है। तो सर इस सब्जेक्ट में हमने क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, कितना एक्स्ट्रा पढ़ना है, और क्या जो हमने पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ा हुआ है, दिस इज गोइंग टू हेल्प अस, विल दिस गोइंग टू हेल्प अस। ओके, द आंसर इज यस, अ लॉट। जो आपने पढ़ा हुआ है, जो कॉन्सेप्ट्स आपके बने हुए हैं, दोज कॉन्सेप्ट्स विल रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट। ठीक है। तो सर स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग के अंदर क्या उसी तरह से कैलकुलेशंस हैं, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होंगी, हमें वो कैलकुलेशंस बहुत सारी करनी होंगी जो हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कर रहे थे। आंसर इज नॉट रियली। व्हाई? Because as the name suggests, as the name of the paper suggests, strategic business reporting. So the core idea of this subject is to make you people strategic thinkers, decision makers. You know that now the role of a CFO or a chartered accountant is no more of a number cruncher. आपको नंबर पुट इन नहीं करने, ठीक है, आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी,
आपको डिसीजंस लेने हैं, आप में उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना है सो दैट यू कैन बी इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट डिसीजन, यू कैन स्टेयर द पाथवे ऑफ द कंपनी विच यू आर पार्ट ऑफ। ठीक है, क्योंकि अब ये बैलेंस शीट और पीएनएल तो सॉफ्टवेयर खुद बना लेता है। ठीक है, एक बिल्कुल जूनियर लेवल का, क्लरिकल लेवल का असिस्टेंट अगर डेटा एंट्री करता है सिस्टम के अंदर, इनवॉइसिंग की, पेमेंट्स की, the system automatically creates financial statements, so you do not need to make debits and credits manually anymore, and system itself generates the financial statements. Okay, तो आपका रोल अब वो है नहीं मुंशियों वाला। ठीक है, इसीलिए स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग के पेपर की ये रिक्वायरमेंट है कि आप थोड़ा इस दिमाग को इस्तेमाल करें, आप अपनी रिपोर्टिंग स्किल्स को एनहांस करें। रिपोर्टिंग से मुराद not making the financial statements, analyzing it, interpreting it, advising, okay, taking decisions. Okay, so सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या, सिलेबस ओवरव्यू में फंडामेंटल एथिकल एंड प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स। तो एथिक्स आपको हर जगह मिलेगा, आपको एथिक्स एसबीआर में भी मिलेगा, बहुत ठीक ठाक मिलेगा। ट्रिपल ए यानी एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस में तो आपको बहुत बहुत ज्यादा मिलेगा, और भी सब्जेक्ट्स के अंदर एसबीएल में मिलेगा, एपीएम में मिलेगा, एथिक्स जगह जगह मिलेगा। ठीक है, तो यहां भी पढ़ना पड़ेगा। एंड हियर एथिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू ऑडिटर नहीं देखना होगा हमें, वो तो हम ऑडिट में देखेंगे, लेकिन यहाँ वर्क प्लेस अकाउंटेंट्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सीएफओ है, सीएफओ ने कोई एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रपोज किया है विच इज नॉट करेक्ट, एंड ही इज इंसिस्टिंग कि भाई यही होना चाहिए। क्यों, उसके पीछे क्या मोटिव्स हैं, उसका क्या अनएथिकल बिहेवियर है। ठीक है, एथिकल अनएथिकल बिहेवियर, हाउ इट इन्वॉल्व्स or merges with your accounting concepts, that's really interesting। ठीक है, तो एथिक्स के प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे, और जब हम उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, प्रैक्टिकल सिनेरियोस को अटेम्प्ट करेंगे, देन वी विल गोइंग टू सी कि किस तरह से एथिक्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग गोज हैंड इन हैंड। ठीक है, एथिकल बिहेवियर, फिर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर सारे स्टैंडर्ड्स बने हैं। ठीक है, क्योंकि जो बन गए हैं वो बन गए हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जहां हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है, एंड वी स्टिल नीड गाइडेंस, हाउ शुड वी प्रोसीड, कैसे इसकी अकाउंटिंग करें, कैसे इसको डिस्क्लोज करें, कैसे इसकी रिपोर्टिंग करें, देन द गाइडिंग सोर्स फॉर अस विल बी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आर यू वेयरिंग दिस? क्योंकि ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हमें बताएगा कि हमने क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, किस स्टैंडर्ड के करीब हो रही है ये सिचुएशन, वी हैव टू फॉलो द रेलेवेंट प्रिंसिपल्स ऑफ दैट दोज स्टैंडर्ड्स। अगर कोई स्टैंडर्ड नहीं है अवेलेबल, हमने किस तरह से उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक होगी बात? एप्लीकेशन, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस ऑफ अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, करंट फ्रेमवर्क है क्या, और हमारे उसमें क्या गाइडेंसेस हैं, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको कुछ बातें बता दी, फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में कुछ बातें बता दी। देन द कोर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जो आपके लिए नए नहीं है, आपने काफी सारे पढ़े हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर। ठीक है, आपने बहुत सारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर पढ़े हैं। कौन से स्टैंडर्ड्स हैं? रेवेन्यू का स्टैंडर्ड्स, आईएफआरएस 15, द मोस्ट फेमस, पढ़ा हुआ है, यहां पर भी पढ़ेंगे, और कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स, कुछ मजीद एडिशनल प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस व्हिच आर एग्जाम स्पेसिफिक, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स अपनी जगह पर एप्लीकेबल है, एडिशनल कॉन्सेप्ट्स विल स्टार्ट पॉपिंग इन। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स लिखा हुआ, नॉन करंट एसेट्स है, बट यू नो देयर आर लॉट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स इन नॉन करंट एसेट्स, property plant equipment, investment property, intangibles, borrowing cost, held for sale, blah blah। ठीक है, वो सारे स्टैंडर्ड्स वापस आ जाएंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, आईएफआरएस 9, आईएफआरएस 7, आईएस 32, सब चीजें। लीजेस, आईएफआरएस 16, आपके लीजेस का स्टैंडर्ड जो आपने पढ़ा हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी आपने पढ़ा हुआ है, उसके अंदर कुछ एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, हेजिंग आ जाएगा, ठीक है, हेज अकाउंटिंग आ जाएगी। एम्प्लॉय बेनिफिट्स, दिस इज अ न्यू स्टैंडर्ड फॉर यू कंपैरेटिवली, ये आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, IAS 19, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, वेरी इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है,
इनकम टैक्सेस IS 12 पड़ा हुआ है, यहाँ पर वापस आएगा, और ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर एक कुछ बड़े सिनेरियोज के अंदर उसकी इम्प्लीकेशन आएगी डिसीजन मेकिंग के साथ। प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज IS 37 मशहूर जमाना स्टैंडर्ड, जिसमें आप लाइबिलिटीज और डिस्क्लोजर से रिलेटेड बहुत सारी बातें देखते हैं कि कब लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी, कब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, और कब वो लाइबिलिटी रिकॉर्ड होनी चाहिए, कब उसका डिस्क्लोजर जाना चाहिए। ये सारी की सारी बातें रिकैप भी होंगी, और हम इसको टिकली क्वेश्चन में भी देख रहे होंगे। इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड IAS 10, एडजस्टिंग इवेंट्स, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, वही सारी कहानी यहाँ पे भी। शेयर बेस्ड पेमेंट्स, ये आप लोगों के लिए नया स्टैंडर्ड है, आप लोगों ने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में स्टैंडर्ड नहीं देखा, नहीं पढ़ा। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड एंड एग्जामिनेबल स्टैंडर्ड, IFRS 2, शेयर बेस्ड पेमेंट्स। अगर पेमेंट्स शेयर्स की फॉर्म में, तो अकाउंटिंग कैसे होगी? ठीक है। गुड्स लेकर आप पैसे नहीं दे रहे हो, शेयर्स दे रहे हो। सर्विसेज लेकर आप पैसे नहीं दे रहे हो एम्प्लॉइज को, इनको शेयर्स दे रहे हो, अब उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? ठीक है। फेयर वैल्यू मेजरमेंट का स्टैंडर्ड पड़ा हुआ है, मजीद देखेंगे कुछ बातें। SME रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड्स, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए अलग से रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जिनमें रिपोर्टिंग कॉम्प्लेक्सिटीज को कम कर दिया गया है। तो वो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, वी नीड टू सी दिस। इसके अलावा अदर रिपोर्टिंग इश्यूज एज वेल। फिर हमने स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग के अंदर ग्रुप एंटिटीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना है, अच्छे से देखना है, एडवांस लेवल में देखना है, कॉम्प्लेक्स ग्रुप स्ट्रक्चर्स को भी देखना है। ग्रुप्स आपने देखे हैं, यू नो, बट हियर वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस द कॉम्प्लेक्स ग्रुप स्ट्रक्चर्स। ठीक है। कॉम्प्लेक्स ग्रुप स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, कंसोलिडेटेड कैश फ्लोज को देखेंगे, एसोसिएट्स जॉइंट अरेंजमेंट्स को देखेंगे। ग्रुप स्ट्रक्चर में चेंजेस अगर आ जाएं मिड ईयर, तो कैसे अकाउंट फॉर होंगी वो हम देखेंगे। फॉरेन ट्रांजैक्शन, फॉरेन करेंसी कंसोलिडेशन, सब्सिडरी तो है आपकी, लेकिन वो फॉरेन कंट्री के अंदर है, अब उसकी जो करेंसी है वो डिफरेंट है। तो हम देखेंगे व्हाट इज फंक्शनल करेंसी, व्हाट इज प्रेजेंटेशन करेंसी, हाउ द फॉरेन सब्सिडरी इज गोइंग टू बी कंसोलिडेटेड। दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी व्हिच वी विल बी गोइंग थ्रू। ओके। Then interpreting financial statements for different stakeholders, interpretation, ratio analysis। ठीक है, देखा है आपने बहुत सब्जेक्ट्स में, दोबारा से देखेंगे, कुछ नई चीजें भी देखेंगे। नॉन फाइनेंशियल रेशियोज की बातें भी हम करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे इंटरप्रेट किया जाए, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस एंड पोटेंशियल चेंजेस इन अकाउंटिंग रेगुलेशन, कुछ करंट इश्यूज की बातें हम करेंगे। सस्टेनेबिलिटी, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह, नए रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इवॉल्व हुए हैं, इमर्ज हुए हैं, उनकी बातें करेंगे, उनकी क्या इम्प्लीकेशंस वगैरह है। एम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स, ये वो टेक्नोलॉजी स्किल्स हैं which ACCA is inculcating in you people, so that you use CBE practice platform, you use CBE platform to attempt your papers। वो सारे टेक्निकल टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, जो आपने पेपर को अटेम्प्ट करने और पढ़ने में भी इस्तेमाल करनी है। ठीक है। हम उन स्टडी रिसोर्सेज की भी बात करने वाले हैं। तो पेपर पैटर्न कैसा है? पेपर पैटर्न, तो जब पेपर देखेंगे तो भी, अब तो ही आपको बात समझ आएगी, लेकिन कुछ बातें हम कर लेते हैं। पेपर पैटर्न में जब आप देखेंगे, देन यू विल बी noting and observing that there will be 4 questions, 1, 2, 3, 4। सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन। First question worth 30 marks will be based on financial statements of group entities or extracts thereof, and is also likely to require the consideration of some financial reporting issues। तो एग्जामिनर क्या करता है, वो कंसोलिडेशन के साथ IS 19 डाल देगा, कंसोलिडेशन के साथ शेयर बेस्ड पेमेंट के एडजस्टमेंट भी डाल देगा, डाल सकता है, कोई मसले की बात। दिस क्वेश्चन विल इंक्लूड अ प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट। ये पिछले तकरीबन 2 साल से ये चीज, 1 या 2 साल से ये चीज स्टार्ट, 2 साल हो गए, कि प्री पॉपुलेटेड वर्कशीट आपको दी जाएगी, जिसके अंदर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कुछ ड्राफ्ट होगा और उसमें कुछ एरर्स होंगे, एंड यू विल नीड टू रेक्टिफाई दोज एरर्स। तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए। ठीक है। तो जब आप लेक्चर्स को गो थ्रू करेंगे, तो मैंने कोशिश ये की है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी आपको क्लियर हो। So one of the requirement will be correct to correct this spreadsheet for the range of issues.
तो जब आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट पता लगेगा कि अगर एक इम्पैक्ट गुडविल में है जा रहा है तो दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जा रहा है, एनसीआई में जा रहा है, रिजर्व्स में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ताकि अगर कोई एरर को आप ठीक कर रहे हो सो यू विल बी अकॉर्डिंगली एडजस्टिंग दैट एरर, ठीक है। Candidates should understand that in addition to the spreadsheet requirement, a discussion and explanation of these numbers will also be required. That's very important. Numbers जो आप करते हैं वही आपको बयान करना है, कुछ एक्स्ट्रा बयान नहीं करना। यानी कि जो आप कर रहे हैं वो आपके दिमाग में है, आपको आता है। द ओनली थिंग इज यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट प्रॉपरली कि किस तरह से आप इसको प्रॉपरली ड्राफ्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, question 2, second question worth 20 marks will require candidates to consider the reporting implications and ethical implications. और क्वेश्चन 2 में आपको हमेशा एथिक्स भी नजर आएगा। एथिक्स कुछ रिपोर्टिंग होगी, रिपोर्टिंग के अंदर कुछ मसले मसाइल होंगे, कुछ एथिकल प्रॉब्लम्स होंगे, तो आपने उसको लिंक करके अपने आंसर को ड्राफ्ट करें। फिर सेक्शन बी में दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 और 4। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ टू क्वेश्चंस व्हिच विल बी सिनेरियो बेस्ड ऑब्वियसली। प्रोफेशनल लेवल पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जाहिर सी बात है, एंड विल कंटेन बोथ डिस्कर्सिव एंड कंप्यूटेशनल एलिमेंट्स। डिस्कर्सिव और कंप्यूटेशनल एलिमेंट होगा, कंप्यूटेशनल एलिमेंट हर तौर थोड़ा होगा, डिस्कर्सिव ज्यादा ही होगा, ठीक है। Section B could deal with any aspect of the syllabus. Will also include either a full question or part of a question that tests the analysis part of the syllabus. Analysis part भी test होगा, ratio analysis, understanding, interpretation. Two professional marks will be awarded in section B. Question that requires analysis, guidance will again be provided. चलो, पास्ट एग्जाम ट्रेंड्स एंड एनालिसिस, इसको हम देखेंगे कि पास्ट में, बल्कि एग्जाम ट्रेंड क्या है, एनालिसिस क्या है, ये तो जब हम पास पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे। एक मैंने एनालिसिस बनाया हुआ है, अभी वो आपके किसी काम का नहीं है। वंस यू आर डन विद द लेक्चर्स, वंस विल बी प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द पास्ट एग्जाम प्रैक्टिस, क्योंकि ऑब्वियसली एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं। सो गो थ्रू द लेक्चर्स इन पीस, और उसके बाद फिर पास्ट एग्जाम की काफी सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हैं पोर्टल के ऊपर। हम मजीद इस सेशन में और भी क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। द की इज दैट यू योरसेल्फ शुड बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। हम जितने भी क्वेश्चंस कर लें, जब तक आप खुद उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, मसला हल नहीं। यू हैव द गाइडेंस, यू हैव द सॉल्यूशन, यू हैव द क्वेश्चन पेपर्स, यू हैव द सॉल्यूशन, यू हैव द मार्किंग स्कीम, यू हैव द एग्जामिनर्स गाइडलाइंस, सब आपके पास है। लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चीजें आपको नहीं आएंगी। अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन टू दिस स्लाइड व्हिच इज फॉर रीजंस ऑफ फेलियर, लेट अस लुक एट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ एसीसीए वन बाय वन जो आपके पास अवेलेबल है। एक डॉक्यूमेंट ये है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग एग्जामिनर्स अप्रोच, ठीक है। uh, अभी एग्जामिनर अप्रोच शायद बहुत ज्यादा रेलेवेंट इस स्टेज पर नहीं है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू इक्विप योर सेल्फ विद रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो वही बातें जो मैंने अभी आपको बताई, फॉर्मेट से रिलेटेड वही बातें इधर आ रही हैं सारी की सारी, ठीक है। क्वेश्चन 1 में क्या है, क्वेश्चन 2 में क्या है, क्वेश्चन 3 में क्या है, ठीक है। Candidates will have a demonstrate range of skills which include accounting issues and concepts, पता होने चाहिए आपको। इश्यूज पता होंगे तभी आप एक्सप्लेन कर सकेंगे, ठीक है। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट खत्म हो गया, दूसरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होने चाहिए। अच्छा, दूसरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है सिलेबस एंड स्टडी गाइड। अच्छा, इसको आप गो थ्रू कर लेंगे, एक दफा देख लें, बस बहुत है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये वही बातें हैं जो मैंने आपको समराइज करके बता दी हैं, ठीक है, कि सिलेबस में है क्या क्या चीजें, ठीक है। ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं, फिर ग्रुप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह, अच्छा, उसी को डिटेल में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। अच्छा है, स्टेपिंग अप फ्रॉम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपने क्या पढ़ा, फिर अब एसबीआर में क्या पढ़ेंगे, ठीक है। एफए, फिर एफआर, फिर एसबीआर, सो ऑब्वियसली व्हाटएवर यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस पेपर्स ऑब्वियसली इज बीइंग कैरी फॉरवर्डेड विद सम टॉप ऑफ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स, एडवांस कॉन्सेप्ट्स। एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं आपके लिए, एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट्स ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कौन से एफआर में टेस्ट हुए थे, और एसबीआर इंटरनेशनल, स्ट्रीम इंटरनेशनल याद रखिएगा।
ऐसे भी गुजरे हैं पास्ट में बच्चे जिन्होंने यूके की स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली, बेवकूफी में। ज्यादा फर्क नहीं, थोड़ा फर्क है, बट वाई? ठीक है, क्यों बेवकूफियां करते हो आप पेपर सिलेक्शन के लिए? अच्छा, तो ये आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्टैंडर्ड देखे, जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये आपने एफआर में नहीं पढ़ा, एसबीआर में है। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स आपके एसबीआर में है। फर्स्ट टाइम एडॉप्शन, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आइस 34, ठीक है। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स आपने एफआर में नहीं पढ़ा, FRS 8 यहाँ पर है। जॉइंट अरेंजमेंट्स एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ, ये कंसोलिडेशन के अंदर कवर हो जाएंगे आपके। अच्छा, देख सकते हैं आप IFRS 18 एंड IFRS 19 कंपैरेटिवली द न्यू स्टैंडर्ड्स, ठीक है, सब्सिडरीज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इन FS इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स टू अदर IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये आपने कुछ पहले भी पढ़ा है, लेकिन IFRS 19, IFRS फॉर SMEs ये आपने नहीं पढ़े। क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर, सस्टेनेबिलिटी के अंदर हम बात करेंगे कि क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर्स, दिस इज द टॉक ऑफ द टाउन नाउ। Nowadays, this area is the talk of the town. Sustainability disclosure standards. In fact, if I tell you कि CA में, जो हमारी जो CA की क्वालिफिकेशन है पाकिस्तान की, फ्रॉम विच इज रेगुलेटेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, CA फाइनल लेवल के ऊपर दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ फुल फ्लैज पेपर ऑन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, full fledged paper, ठीक है। So this topic is now the talk of the town. हर अटेम्प्ट में आपको इससे रिलेटेड कोई चीज मिलेगी, एग्जामिनर टेस्ट करता है, पूछता है, आपको पता होना चाहिए। सो योर ग्रिप शुड बी वेरी साउंड। यूरोपियन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एग्जामिन नहीं होंगे, कुछ डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए जो यहीं पर नीचे दिए हुए हैं, याद रख लीजिएगा, यहाँ पे लिखे हुए हैं। रीड करने के लिए रीड हमें करना होगा ये। अदर स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट कमेंट्री, मेकिंग मटेरियल जजमेंट्स, प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स की कुछ बातें हैं जो कोर्स का पार्ट है आपके, ठीक है। SBR एसेंशियल्स के अंदर काफी सारी बातें मैं कर चुका, वही इस चार्ट के अंदर आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर समराइज किया हुआ है कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के ऊपर ही जाहिर सी बात है कि पूरी इमारत खड़ी होगी, जिसमें रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स भी, आपकी प्रोफेशनल जब आपकी प्रोफेशनलिज्म, आपकी जजमेंट ऑब्वियसली प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, and your ethical stance, because if your stance is not ethical, then you will try to play with those judgmental areas, and obviously you will be lacking professionalism, this means। अच्छा, तो बाकी सारी बातें बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा, सेक्शन A सेक्शन B क्या है क्या नहीं है, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, बट दिस ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, सो जरूर आपको पता होना चाहिए है, ठीक है। अच्छा है, तो ये सारी की सारी बातें हैं, आप देख चुके हैं। लेट्स मूविंग ऑन अगेन टू द प्रेजेंटेशन, ओके। प्लानर के बारे में हम बात करेंगे, प्लानर मैंने भी आपसे शेयर नहीं किया, प्लानर पे भी हम बात करेंगे। रीजंस ऑफ फेलियर क्या होते हैं? स्टूडेंट्स की कवरेज अच्छी नहीं होती, वो टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, ये टॉपिक हमसे अच्छे से ड्राफ्ट नहीं हो रहा, ये हमें नहीं समझ आ रहा, कुछ क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं, कोई चीज मुश्किल लगे उसी के पीछे पड़ जाओ। एंड दिस इज ए प्रोफेशनल स्टेज। आपको टीचर ने गाइडेंस दे दी, कॉन्सेप्ट समझा दिया, कुछ क्वेश्चंस बता दिए, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस को आपने खुद अप्रोच करना है। एक सवाल मैंने करा दिया, दो सवाल मैंने करा दिया, 10 आपने मजीद करने हैं, ठीक है, सारे ही मैं करा दूंगा। तो बात यह है कि मैंने तो नहीं देना पेपर, पेपर तो आपने देना है। सो यू शुड यूज योर ब्रेन, 100% ऑफ योर ओन ब्रेन। वही कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ाए गए हैं लेक्चर्स के दौरान, वही क्वेश्चन में अप्लाई, उसी को अप्लाई करना, उसको ड्राफ्ट करना है, और क्या करना। बट until and unless you yourself start practicing those questions on your own, you will not be able to pass this exam, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉपर प्रैक्टिस, यू आर थ्रू इंशाल्लाह। सो सिलेक्टिव स्टडीज नहीं करनी, सब कवर करना है इंशाल्लाह। कोई ऐसी चीज है जो टीचर ने नहीं बताई, कोई ऐसी चीज है जो टीचर ने नहीं बताई, ठीक है, बहुत इजी है, आपने रीड की, समझ आ गई, नहीं समझ आ रही, योर टीचर इज देयर टू हेल्प यू आउट, पूछ लो। कोई ऐसा टॉपिक रह गया है, वो थियोरेटिकल सा टॉपिक है, कोई ऐसी चीज है जो मिसाल के तौर पर आपको नहीं नजर आ रही, बट यू नो द कंटेंट। ACC स्टडी हब से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि ACC स्टडी हब में है क्या, सब कुछ वहां पे गिवन है।
उसको आपने रीड किया, एग्जाम्पल है, पढ़ लिया, समझ आ गया, यू आर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। नहीं समझ आ रहा, वी आर देयर टू हेल्प यू, पूछ लो, कोई मसले की बात नहीं, ठीक। inability to inability to apply the concepts, arguments and different perspectives of the stakeholders. Stakeholders perspective आपको explain करने आने चाहिए। लैक ऑफ पेपर टेक्निक, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, थॉट प्रोसेस कैसे चलेगा, चैनलाइज कैसे कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग से पहले एक इनिशियल ड्राफ्ट आपने कैसे बनाना, प्लानिंग कैसे करनी है ड्राफ्टिंग की। लैक ऑफ प्रैक्टिस, you have to do a lot of practice, ठीक है। do a lot of practice on CB practice platform please। आंसर प्लानिंग अच्छे से करोगे तो ही आंसर का ड्राफ्ट अच्छे से बनेगा। टाइम मैनेजमेंट को बिल्कुल मद्देनजर रखना है, आपने एक सवाल के ऊपर आपने अलॉटेड टाइम से ज्यादा दे दिया, बाकी सवाल सफर करेंगे आपको। पुअर ड्राफ्टिंग स्किल्स एंड पुअर कनेक्शन ऑफ थॉट्स, अगेन कैसे बेहतर होगा, थ्रू ड्राफ्टिंग। इग्नोरिंग टेक्निकल आर्टिकल्स एंड करंट इश्यूज, टेक्निकल आर्टिकल्स नहीं पढ़ते, करंट इश्यूज आप नहीं पढ़ते, मसला है। सब एसीसी स्टडी हब में गिवन है, सब गिवन है। कोई चीज अगर मिसाल ले, किसी चीज कोई करंट इशू के बारे में मैंने नहीं बताया, वो भी स्टडी हब के अंदर गिवन है, आप उसको रीड करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सबमिट इट टू मी, आई विल गेट इट चेक, मैं आपको उस पर फीडबैक दूंगा। आपको कोई क्वेश्चन है, आप सबमिट, आप अटेम्प्ट करें, सबमिट करें, आई विल गिव मार्क्स ऑन दोज क्वेश्चंस, आई विल गिव फीडबैक ऑन दोज क्वेश्चंस, आई विल हेल्प यू आउट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, ठीक है। ऑनलाइन मोड के अंदर टीचर हर बच्चे के पीछे नहीं पढ़ सकता, मुझे नहीं पता आप क्या पढ़ रहे हैं, किस टॉपिक पर हैं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बताओ, मसला है, बताओ। वी कैन इवन हैव अ वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन, डिस्कशन सेशन, नो इश्यूज। लेकिन अगर मुझे कुछ भी नहीं पता होगा, मैं समझूंगा कि सब सुकून से चल रहे हैं, सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, किसी को कोई मसला नहीं। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। अच्छा भाई, हाउ वी टीच एट केएनएस, आपके पास रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, कुछ मसला हो मुझसे पूछ सकते हो आप, सीक्वेंस में क्या है, किस तरह से है। लाइव क्लासेस इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि बिकॉज इन एवरी अटेम्प्ट, जाहिर सी बात है कि ट्राई टू अपडेट द लेक्चर्स, आई ट्राई टू अपडेट द लेक्चर्स, तो मैं कोशिश ही करूंगा कि मैं अपने जो भी मेरे लेक्चर्स हैं अपनी जगह मौजूद हैं, पोर्टल पर आपको अवेलेबल मिलेंगे, बट आई विल बी री रिकॉर्डिंग द लेक्चर्स। अपडेटेड लेक्चर्स भी वक्तन फवक्तन आपको पोर्टल के ऊपर लगते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप अपनी कवरेज करते रहें, वो अपडेटेड लेक्चर्स भी आपको लगते हुए नजर आ रहे होंगे। हर हफ्ते मेरी कोशिश होगी कि एक दो लेक्चर्स में रिलीज करता रहूँ, ठीक है। एग्जाम्स जस्ट पहले हमारा वेबिनार भी होता है, रिवीजन सेशन भी होता है, वेबिनार भी होता है, जिसमें हम प्रैक्टिस भी करते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें इंशाल्लाह आपको अवेलेबल होंगी। असाइनमेंट्स, टॉपिक खत्म हो रहा है, क्वेश्चन आप खुद करके, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन स्पेसिफिकली अगर आप सबमिट करेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह चेक भी करके दूंगा। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपको अवेलेबल होंगी। अच्छा, स्टूडेंट्स रिसोर्सेज क्या क्या हैं तो भी बता दूं मैं आपको। प्लानर सबसे पहले, अच्छा प्लानर ये एक टेंटेटिव प्लानर है, ऐसा नहीं है कि इस प्लानर से आप ऊपर नीचे होंगे तो जिंदगी में आपका मसला हो जाएगा, ये टेंटेटिव प्लानर है, सिर्फ एक टेंटेटिव प्लानर है, ठीक है। आप इससे जल्दी भी कवरेज कर सकते हैं, इससे थोड़ा स्लो भी चल सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन करना, अगर आपकी 3 महीने की अटेम्प्ट है तो आपने इसी तरह से चलना है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन सेशन तो, और आप क्या भी साथ में कवर करें भाई, वीक 1 में एम्प्लॉय बेनिफिट्स, वीक 2 में शेयर बेस्ड पेमेंट्स, वीक 3 में IFRS 16 IFRS 15, ज्यादा लगता है तो ठीक है, वीक 3 में IFRS 16 कवर कर लो, फिर IFRS 15 को नेक्स्ट वीक में लेके जाओ, ठीक है। IS 12 IFRS 9, ग्रुप अकाउंटिंग, IS 21 एंड फॉरेन करेंसी, देन इन वीक 6, वीक 7 में, वीक 8 में, वीक 9 में, वीक 10 में, सही है। फिर वीक 11 एंड वीक 12, ठीक है। और फिर जब हम क्लोजर की तरफ पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे वीक में 2-3 लाइव सेशन हो जिसमें प्रैक्टिस भी हो। यू गेटिंग दिस? तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको मैक्सिमम फैसिलिटेट करें। कुछ इशू है, डू लेट मी नो, टेक्स्ट मी वन ऑन वन विदाउट बॉदरिंग एवरीवन ऑन द ग्रुप, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज पर माय कन्वीनियंस इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन पहले सुकून से आप कवर कर लें, कवर करते चले जाएं, नोट डाउन कर लें, क्यूरी टॉपिक खत्म हो जाए, सारी क्यूरीज मुझे आपने मैसेज कर दी एक साथ,
मैं आपको जवाब दे दूँ। ठीक हो गई बात? अच्छा, फिर अब मैं कुछ ऐसी चीजें आपको दिखाऊं। तो बेटा अगर आपका एक ही पेपर है तो आप 3 मंथ्स के अंदर इजीली कवर कर सकते हो। ठीक है, एक पेपर है। अ, असद, अगर आपका एक पेपर है आप इजीली कवर कर सकते हो। अगर आपका एक पेपर है और कोई ऐसा पुराना स्किल्स का पेपर है जो आपने पढ़ा हुआ है, उसके साथ भी आप एसबीआर 3 महीने में कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आप दो प्रोफेशनल दे रहे हो तो फिर 6 महीने की आपके पास अटेम्प्ट होनी चाहिए। एक प्रोफेशनल 3 महीने में डुएबल है। चलो, तो मैं अब जो आपके साथ कुछ दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और आप मुझे बताइएगा कि क्या आपको ये स्क्रीन विजिबल है बेटा, जरा मुझे बता दें। जी, बिल्कुल ठीक है। रोशन आ रहा। एज फार एज योर क्यूरी इज कंसर्न, ठीक है, लो आपने अगर नेक्स्ट 15 डेज में दे दिया, देन यू हैव एम्पल ऑफ टाइम फॉर एसबीआर। नो वरीज। ठीक है, अच्छा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। सो दिस इज द सीबी प्रैक्टिस, सॉरी, एसीसी स्टडी हब फॉर सितंबर टू जून 2026। अभी सारा कंटेंट आपके पास ऑफिशियल एसीसी का कंटेंट अवेलेबल है चैप्टर वाइज। लेक्चर आप देखेंगे तो लेक्चर ऑब्वियसली बात है कि टॉपिक्स यही हैं, कंटेंट ऐसा ही है, कॉन्सेप्ट्स यही हैं सारे के सारे। लेकिन ये एसीसी का ऑफिशियल कंटेंट है। इसमें आपको मजीद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कोई ऐसे टॉपिक जो कोई बात एक्स्ट्रा लिखी हुई हो वो भी आपके सामने आ जाएगी। सो यू डू हैव टू कंसिडर दिस स्टडी हब कंटेंट। ठीक है, कोई चैप्टर तो देख लें, इसमें एग्जाम टिप्स भी लिखी हुई हैं। ठीक है, मैंने कवर कराया हुआ है, वो भी आपको सारी बातें बताई हुई होंगी। ये भी आपके पास पूरा कंटेंट अवेलेबल है, जिसके अंदर लेटेस्ट टेक्निकल आर्टिकल्स भी सारे के सारे एम्बेडेड हैं। कुछ इसमें हेल्प गाइडलाइन की वीडियोस भी गिवन है। सो दिस इज अ वेरी गुड सोर्स विच इज अवेलेबल टू ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म भी है। ये सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे आपके पास क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है, तो ये सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल है। सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोग अटेम्प्ट करें, क्वेश्चंस देखें, जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन वीडियोस होंगी उसको आप रेफर करें। इंशाल्लाह इस सेशन के अंदर मैं मजीद वीडियोस रिलीज करूंगा पास्ट एग्जाम क्वेश्चन से रिलेटेड। सो यू विल हैव एम्पल ऑफ गाइडलाइन टू इंशाल्लाह पास दिस पेपर। ठीक है बेटा, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड व्हिच आई वांटेड टू कम्युनिकेट यू। If you have any questions, if you have any queries, then it's your turn to ask me. CFAP 1 और SBR CFAP 1 में तो काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा भी हैं, बहुत डिटेल्ड है। CFAP 1 पर अगर आपकी ग्रिप है तो SBR यू कैन डू इट ऑन योर ओन, इनफैक्ट। ठीक है, स्टडी मटेरियल आपके पास है, एसीसी का स्टडी सारा मटेरियल आपके पास है। इसके अलावा अगर तो रेफरेंस के लिए कैप्लन वगैरह की बुक आपके पास है, प्रैक्टिस किट आपके पास है, यू कैन डू इट ऑन योर ओन इफ यू हैव डन CFAP 1 properly. Any other questions? और जैसे जैसे मैं अपडेटेड लेक्चर्स अपने रिलीज करता जाऊंगा, आई विल कीप यू पोस्टेड, आई विल नोटिफाई यू कि ये इस टॉपिक पर ये लेक्चर अब अवेलेबल है, अपडेटेड लेक्चर। नॉट मच नीडेड, रोशन आ रहा, नॉट मच नीडेड। आप स्टार्ट करें डिस्कशन, मतलब लेक्चर आप स्टार्ट करें, यू विल इंशाल्लाह स्टार्ट पिकिंग अप द कॉन्सेप्ट। इफ यू आर पिकिंग इट अप इजीली तो फिर आपको एफआर दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके पास टाइम है, अवेलेबिलिटी है, यू कैन। लेकिन आप लेक्चर देखें, कुछ मसला है, कुछ मुश्किल है, देन यू कैन रेफर। अदरवाइज ऑब्वियसली डिस्कशन के अंदर वो रिकैप पुराना वाला हो ही जाएगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे ना। सो डोंट वरी अबाउट दैट इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। Enjoy your learning journey of SBR. I hope and I pray that I
may deliver my best to facilitate you people in passing your examination. अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत कामयाब करे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जो पेपर्स आपने पहले दिए हैं, अब देने वाले हैं, may Allah bless you with flying colors. Thank you so very much. Take care a lot. May Allah bless you all. See you in any of the next session. Bye bye. Allah Hafiz.